स्कूल हो या ऑफिस या हो कोई बिजनेस, एआई हर तरफ अपनी जगह बना रहा है। मैं बात कर रही हूँ हमारे दूसरे स्पीकर की, जो हमें एआई की एक्साइटिंग दुनिया से रूबरू कराएंगे। अधिक जानकारी के लिए मिस्टर राजन आपके उनके बारे में कुछ कहेंगे। थैंक यू एकता जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे पता है हमारे अगले एक्सपर्ट होंगे सुमित, और मुझे पता है कि आपको सुमित से भी ज़्यादा आता है। अगर आपको इनसे ज़्यादा आता है और अगर आपको आपस में बात करनी है, सो देयर इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, बाहर जाकर कर लेना। जिनको नहीं आता है उनको तो सुन लेने दो। ऐसा पिछली बार भी था और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा अगली बार भी लगेगा। It gives me immense pleasure to introduce Engineer Sumit Tekniwal. Today's session on artificial intelligence will be delivered by Sumit, a highly accomplished information security professional with over 12 years of experience in cyber security, governance, compliance, privacy, and risk management. Sumit currently serves as Senior Manager, Information Security, Governance, Compliance, Privacy at Kuwait International Bank. He holds a master's degree in Cyber Law and Information Security from the Indian Institute of Information Technology and a BTech from Gurukul Family Vishwavidyalaya. कहा जाता है, the real power of artificial intelligence lies in human beings, but in empowering them. कृत्रिम बुद्धिमत्ता की वास्तविक शक्ति इंसानों की जगह लेना नहीं, बल्कि उनकी क्षमताओं को और अधिक सशक्त बनाना है। Sumit's work reflects this philosophy, where artificial intelligence, cyber security, and governance come together to build a safer and smarter digital future. Throughout his professional journey, Engineer Sumit has helped organizations strengthen their cyber security framework, protect sensitive information, ensure regulatory compliance, and build resilient security culture. आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें इंजीनियर सुमित टेकनीवाल। 2 मिनट लग जाएंगे और maybe less than that, only a few seconds, by doing the settings of the laptop. And once again, my younger request to you, if you have to talk, if it is very urgent, or if you know more than him also, it is quite possible, please go outside. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आई होप कि आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे एआई के लिए। और आजकल एआई पीक पे है। दिन रात जागते या सोते कहीं पे भी कुछ भी काम करते हुए एआई के बारे में हम लोग सुन रहे हैं और बातें कर रहे हैं। तो पहले आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि कौन कौन लोग हैं जो एआई को यूज़ कर रहे हैं? रेज़ योर हैंड। और कौन कौन है जो सिर्फ वर्क रिलेटेड एआई यूज कर रहे हैं? वेरी गुड। एंड ओनली इन डेली लाइफ? वेरी गुड, वेरी गुड। कोई बता सकता है जो डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं वो किस तरीके से यूज कर रहे हैं? डेली लाइफ में मैं वीडियो बनाती हूँ, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है तो वो उससे ढूंढती हूँ। तो सबसे पहले मेरा रील्स है, वो मैं वीडियो बनाती हूँ। Very good, very good. One of the capability of AI that she is using, utmost, that's generating the image and the videos for her own lifestyle, I guess, that for your own habit, information. Very good, very good. So, since we all are using AI, it is very important to understand how AI works, right? And to understand that, you have to give me 30 minutes of your time, and let's start the journey with me for AI. I use AI in the office, like for computations, mathematical computations. I could do in maybe 4-5 months. I used to do it in 10 minutes long. Like you just write the logics and let the AI work. Very good, excellent, excellent, bravo. So, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 2-3 साल में हम लोगों ने एआई के बारे में सुनना ज़्यादा शुरू किया?
क्या ऐसा है कि ये AI रिसेंटली आया है? नहीं, ऐसा नहीं। थोड़ा सा हिस्ट्री अगर देखें, मैं ईयर्स में नहीं जाऊँगा, मैं सिंपल ये बोलूँगा कि AI नया नहीं है। AI 40-50 साल पहले से डेवलप होना शुरू हो गया, लेकिन वो कभी भी सक्सेस उस समय नहीं हो पाया। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि AI को डेटा चाहिए, बहुत सारा डेटा चाहिए। उसके बिना AI डेवलप नहीं हो सकता, मैच्योर नहीं हो सकता, क्योंकि डेटा ही उसका एक की वैल्यू है जिसकी वजह से वो डेवलप हुआ है, मैच्योर हुआ है। और भी अदर फैक्टर्स थे, जैसे कि इंटरनेट आया। इंटरनेट की वजह से सब कुछ कनेक्ट हुआ। बहुत सारे कंपनीज आई जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया, जिसकी वजह से डेटा भी अवेलेबल होना शुरू हुआ। और चूंकि इंटरनेट में बूम आया और डिजिटल सेक्टर में बूम आया, तो उसकी वजह से हार्डवेयर सेक्टर में भी बूम आया, क्योंकि AI को बहुत ही ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर यूनिट की जरूरत पड़ती है, स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, प्रोसेसिंग पावर की जरूरत पड़ती है, और वो पहले नहीं था, वो बाद में आया। जब सोशल मीडिया बूम हुआ, उस समय सारे लोग जब सोशल मीडिया पर आए, तो उनके डेटा भी सबको अवेलेबल हुआ, सारे कंपनी। तो पहले कंपनी भी जो सिर्फ थी उस AI को यूज कर पा रहे हैं। जब डेटा अवेलेबल हुआ, पावर अवेलेबल हुआ, और सबके हाथ में जब स्मार्टफोन आया, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि जो AI हम लोग यूज कर रहे हैं, let's try to deliver this AI to the end user as well, so that they can use it as well. Such as that she is using AI for creating the image and the videos. Previously, it was not there. It was for different purpose. Within the company, very few companies they were using AI. Me as an information security professional, we have been using AI for many years, but not the way she is using, because it was not available for the end user. It was available for some different purpose. तो AI के बारे में अगर हम बात करते हैं कि AI एग्जैक्टली है, कंप्यूटर से कुछ अलग है। यस, कंप्यूटर से कुछ अलग है। पहले कंप्यूटर आया था, कंप्यूटर को हम लोग कुछ टास्क कंप्लीट लगा देगा, लेकिन जब AI आया तो सारे इक्वेशन चेंज हो गए। कंप्यूटर जो सिंपल टास्क करता था, उसके अलावा भी हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत सारे टास्क जो थे वो कर सकते हैं, फास्ट काम कर सकते हैं, कोई किसी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंडेंसी नहीं हम लोग को रखनी है। तो इस तरीके से AI ने हमें हेल्प करना शुरू किया। तो let's think of the basic definition of AI. What is AI? AI is a branch of computer science which takes the data, run through the engine, and gives you some actionable items such as the image and the videos in simple terms. अगर इसको ध्यान से देखिए, अगर वर्ड को देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इंस्पायर हुआ है ह्यूमन इंटेलिजेंस। हमारे पास खुद का इंटेलिजेंस है, उसी से इंस्पायर हुआ है, और उसको हमने कंप्यूटर में कन्वर्ट किया है। कंप्यूटर को ये पावर दिया है कि आपके पास भी इंटेलिजेंस है, और हमारे जैसा आप सोचो, हमारे जैसा काम करो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आज के दिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास नहीं है, जो कि फ्यूचर में होगा। तो चलिए देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास ये कैपेबिलिटी कैसे आई, लर्निंग मेथड्स क्या है उसके, किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बना। तो प्राइमरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग यूज करता है अपने आप को इंटेलिजेंट बनाने के लिए। पहला लर्निंग मेथड होता है सुपरवाइज लर्निंग। इसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग खूब सारा डेटा देते हैं और डेटा को लेबल करते हैं, मतलब बताते हैं कि ये डेटा क्या है एक्चुअली। उसके बाद उस डेटा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रीड करता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स के थ्रू उसको रन करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है, और उसके बाद उसको लर्निंग करने के बाद वो समझता है कि ये डेटा एक्जैक्टली क्या है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, AI को बोलेंगे बहुत सारे एनिमल्स का फोटो दिया, तो कैसे हम देंगे कि 1000 ऑफ डॉग्स, और सारे फोटोज में लिखा होगा दिस इज अ डॉग, दिस इज अ डॉग, दिस इज अ कैट एंड दिस इज अ कैट। ठीक है, उसके बाद उस डेटा को वो लर्न करेगा कि हाँ डॉग ऐसा दिखता है, कैट ऐसा दिखता है। तो
कल के दिन हम किसी एआई के पास जाते हैं और रैंडमली किसी भी एनिमल का फोटो दिखाते हैं, ठीक है ना, तो उससे पूछते हैं ये एनिमल कौन सा है, तो वो पहचान पाता है कि हाँ ये डॉग है या कैट है। तो इसको हम लोग सुपरवाइज लर्निंग बोलते हैं। एक सिंपल अपने लाइफ के एग्जाम्पल में अगर आप देखें, छोटा सा बच्चा है जिसको हम लोग पहले ABCD सिखाते हैं, उसको दिखाते हैं देखो बच्चे ये A है, ये B है, ये C है। हम लोग बहुत ट्राई करते हैं बच्चे के साथ, ठीक है, लेकिन थोड़े दिन बाद हम लोग लगता है कि शायद ABCD पहचानना शुरू कर दिया है। तो हम लोग कुछ दिन बाद पूछते हैं बच्चे से रैंडमली, अच्छा ये लेटर कौन सा है, ये A है या B है। तो बच्चा लर्निंग मोड में जा चुका था, लर्निंग कर चुका था, वो बताता है कि हाँ ये A है या ये B है। तो इसको हम लोग सुपरवाइज लर्निंग बोलते हैं। रियल टाइम एग्जांपल अगर देखिए, जैसे आपके घरों में एसी लगे हुए हैं, ठीक है, और एसी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपके पास थर्मोस्टेट लगा हुआ है, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन थर्मोस्टेट में एक एआई इनबिल्ट है, ठीक है। आपको एक आदत है कि डेली मॉर्निंग में कुछ टेम्परेचर कुछ और रखते हैं, आफ्टरनून में कुछ और रखते हैं, नाइट में कुछ टेम्परेचर रखते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, एआई को लर्निंग मोड में डाला थर्मोस्टेट के अंदर, सब कुछ आप कुछ मैनुअली कर रहे हैं। कुछ दिन तक ये चलता है कि आप सुबह 24 डिग्री सेल्सियस रख रहे हैं, दोपहर में थोड़ा टेम्परेचर कम कर देते हैं, रात में वापस से बढ़ा देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि लर्निंग हो चुकी है एआई, आपने बोला कि अब मैं ये मैनुअली काम नहीं करूँगा, अब आपने मैनुअल से ऑटोमेटिक मोड में उसको सेट कर दिया। अब एआई पैटर्न देख चुका है कि आप इस समय क्या टेम्परेचर सेट करते हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर आपका चेंज करेगा। मॉर्निंग हुआ ये टाइम हुआ, अच्छा मुझे ये टेम्परेचर सेट करना है, आफ्टरनून हुआ मुझे ये सेट करना है। तो एआई आपको सुपरवाइज लर्निंग के थ्रू ऐसे हेल्प करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे लर्निंग मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। पहले लर्निंग मेथड में हमने डेटा दिया था और हमने बताया था कि ये डेटा क्या है। इस वाले मेथड में हम डेटा देते हैं, लेकिन हम ये नहीं बताते कि ये डेटा क्या है, ठीक है, और बोल देते हैं कि तुम खुद सीखो, ठीक है। क्योंकि एआई डेवलपर्स जो होते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो इस तरीके से इसको डेवलप करती है, इसकी कैपेबिलिटी को, कि वो उसको ग्रुपिंग करना शुरू करता है, ठीक है, और उसको नहीं पता है अभी भी ये डेटा क्या है, लेकिन कुछ फीचर्स उठाते हैं डेटा के और उसको ग्रुप करना शुरू करता है, ठीक है, और ग्रुप के बाद उसको किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस में यूज करता है यूजर के। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप बच्चे के पास जाते हैं और बच्चे बॉक्स ऑफ टॉयज दे देते हैं और उसको बोलते हैं ना कि तुम इसको शॉर्ट करो, उसको ग्रुप करो, ठीक है, अलग अलग बॉक्स में रखना है, एक जैसे करो, बस इतना आपने बोला। लेकिन आपने ये नहीं बोला कि एग्जैक्टली ऐसे ऐसे चीजें करनी है। तो बच्चा थोड़ा इंटेलिजेंट हो चुका है, वो अपने हिसाब से शायद कलर बेस बोले कि मैं ब्लू वाले कलर के जितने टॉय होंगे वो सारे एक जगह रखूंगा, येलो कलर के जितने टॉय होंगे एक जगह रखूंगा। वो हो सकता है साइज में थोड़ा सा और मैच्योर है, नहीं मैं कलर भी देखूंगा, मैं साइज भी देखूंगा, और मैं उसका थोड़ा सा अलग सा और तीसरा फीचर भी देख सकता हूँ, और वो सारे बॉक्स में रखेगा। तो इस तरीके से एआई लर्न करता है उस डेटा के बारे में। एक एग्जांपल लेते हैं जो रियल लाइफ हम लोग डेली देखते हैं। नेटफ्लिक्स जब आप यूज करते हैं मूवीज देखने के लिए, या यूट्यूब यूज करते हैं वीडियो देखने के लिए, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि रिकमेंडेशन का सेक्शन आता है, ठीक है, कुछ दिन बाद, कि हाँ आपके लिए ये रिकमेंडेशन है, आप ये मूवी देख सकते हैं या ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। ये कैसे होता है? नेटफ्लिक्स वालों ने एआई इनेबल किया हुआ है, यूट्यूब वालों ने भी एआई इनेबल किया हुआ है, और उसको डाल दिया है ये अनसुपरवाइज लर्निंग मोड। तो वो क्या करता है, जितनी भी मूवीज हैं उसको पहले शॉर्ट करके वो बैठा हुआ है कि हाँ साईफाई मूवी अलग रख दिया, एक्शन मूवी अलग रख दिया, ड्रामा मूवी अलग रख दिया, और एनिमेशन मूवी अलग रख दिया, ठीक है। तो जब आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप की मूवी को देखना शुरू करते हैं ना, तो वहां से वो ग्रुप की मूवीज को उठा के आपको रिकमेंड करता है, ठीक है। सेम तरीके से यूट्यूब में भी होता है कि जिस टॉपिक को आप देख रहे होते हैं, सेम टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस दिखाना शुरू करता है। आज हम लोग
आधे घंटे 30 मिनट्स AI के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी कि जब आप किसी टॉपिक पे दिन भर बात करते हैं तो आपको अचानक से उसके एडवर्टाइजमेंट देखना शुरू होते हैं, अचानक से वीडियो देखना शुरू होते हैं। अगर मैं रात में 12 बजे कुछ यूट्यूब पर देख रही हूँ तो एवरी डे 12 बजे वो रिकमेंडेशन मुझे आने लगता है। Exactly. और I was so proud कि इस टाइम पे कैसे मुझे दिखता है। It's e-learning. They are learning your pattern, they are learning your habit and trying to help you. Okay? AI is helping you or helping them as well. On behalf नहीं of तो the हमारे company. पास सारा डेटा रहेगा फिर it's not safe also, right? Yes, that's right. So security around AI is one of the concern. That's true. That they have all our data. So we'll talk about little bit security towards the end. That what you have to do, do's and don'ts when you are using AI. So that's about unsupervised learning. थर्ड है हमारा जो फाइनल लर्निंग मेथड है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग पहले में क्या था, डेटा दिया आपने उसको लेबल किया, ठीक है। दूसरे वाले में डेटा दे दिया, कुछ नहीं बोला। तीसरे वाले में आपने टास्क दे दिया, कुछ भी नहीं बोला, आपको बस उसको पहले से क्या बोलते हैं ट्रेन किया हुआ है कि ये टास्क करना है बस, लेकिन दे दिया टास्क। एक एग्जांपल लेते हैं इसको थोड़ा समझने के लिए। बेसिकली ये पेनाल्टी और रिवार्ड बेस्ड सिस्टम पे काम करता है ये वाला जो लर्निंग मेथड होता है। तो जैसे आपने एक रोबोट किया और घर में लेके आते हैं उसको क्लीनिंग करने के लिए, वैक्यूम करने के लिए, ठीक है। जब वो पहली बार आपके घर में आता है तो उसको पता नहीं है कि सोफा कहाँ रखा हुआ है, बेड कहाँ रखा हुआ है, टेबल कहाँ रखा हुआ है। तो उसको कैसे पता चलता है कि वहाँ जाके नहीं टकरा, लेकिन टकराता तो जरूर है जब पहली बार आता है। तो जो AI प्रोग्रामर्स हैं वो जब उस चीज़ को बिल्ड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक ये जो गेम बेस्ड प्रोग्राम डालते हैं जहाँ पे ये बोलते हैं कि जब आप टकराओगे तो आपको माइनस पॉइंट मिलेगा, जब आप नहीं टकराओगे तो आपको पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा। तो जब भी वो रोबोट क्लीन करते समय टकराता है तो उसको तुरंत प्रोग्राम माइनस पॉइंट मिलता है और वो रोबोट अलर्ट हो जाता है कि देखो मैं टकराया, मुझे माइनस पॉइंट मिला, मुझे ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसी हिसाब से रीइंफोर्समेंट लर्निंग AI की होती है। एक बड़ा सिंपल एग्जांपल मैं अपने घर का लेता हूँ। मेरा छोटा बच्चा है 2 साल का, ठीक है। मैंने उसको कुछ नहीं बताया कि किस तरीके से सामान कैसे मांगना है। उसने अपने आप ऑब्जर्व किया कि मैं कुछ सामान मांगता हूँ तो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। और अचानक से एक दिन उसने यूज किया प्लीज गिव मी दिस, प्लीज बोला, हमने सामान दे दिया। उसने नोटिस किया कि प्लीज बोलने से सामान मिलता है, ठीक है। तो वो हर बार प्लीज अब यूज करना शुरू कर दिया। तो इसको बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं सिखाया, ठीक है, लेकिन उसको टास्क कंप्लीट करना है, इसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसको रिवॉर्ड मिल रहा है प्लीज बोल के, ठीक है। और अगर आप पपी का भी एक एग्जांपल ले समझने के लिए इसको थोड़ा और, तो पपी को आप जब सिखा रहे होते हैं कि बैठो बोल के, वो स्टार्टिंग में नहीं बैठेगा, उसको नहीं समझ में आया कि आप क्या बोल रहे हैं, वो आपकी लैंग्वेज को नहीं समझता है, ठीक है। तो आप बोलते हैं sit puppy, he will do something, maybe round, and all of a sudden, coincidentally, he sit, and then he give him food, right? So, puppy analyze, oh, he's saying sit, something like this. When I did that, I got some food, okay? So, whenever I hear this, I have to do the same thing what I did to get the food. So that's what we call it is reinforcement learning. ठीक है? अब AI जो फील्ड है वो काफी वास्ट है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं। एक टर्म आता है मशीन लर्निंग, ठीक है। और मशीन लर्निंग के अंदर भी उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि एक नॉर्मल मशीन लर्निंग है और एक है डीप मशीन लर्निंग, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मल मशीन लर्निंग की बात करेंगे जो कि हमारा सुपरवाइज लर्निंग था, हमने कुछ चीज़ें सिखाई और उसने आउटपुट दिया, ठीक है। लेकिन AI ऐसा क्या है कि इतना इंटेलिजेंट इन सब चीज़ों को करके हो जाता है, जितने भी बुक्स दो सबको पढ़ लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास एक कैपेबिलिटी उसको डेवलप की गई है जो कि उसको बोलते हैं डीप लर्निंग। ये इंस्पायर हुआ है ह्यूमन ब्रेन से, ठीक है। हमारे ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो कि डेटा प्रोसेस करते हैं, डेटा पास करते हैं
और उसको स्टोर करते हैं और समझते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्रिएट किया गया है, ठीक है। वो न्यूरल नेटवर्क वहाँ पे अलग अलग तरीके के वर्कर्स होते हैं जो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेते हैं और सारे वर्कर उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने में लग जाते हैं। एक स्टेटमेंट कुछ हो सकता है, एक स्टेटमेंट दूसरा कुछ हो सकता है। जब ये सारे मिलकर एक एनालिसिस क्रिएट करते हैं तो एज ए आउटपुट फाइनल एक्शन निकलता है। तो इसलिए जब हम क्वेश्चन पूछते हैं एआई से कि मुझे ये बताओ, वो तुरंत आंसर देता है। क्यों? वो इसी की वजह से, क्योंकि जो 2-3 साल में हम सुन रहे हैं कि एआई अचानक से हाइप हुआ है, वो इसी की वजह से हुआ है, क्योंकि डीप लर्निंग है और डीप लर्निंग सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसको समझाने के लिए, मुझे बच्चों की जरूरत पड़ेगी। आर्य, माधव, आरव, नवान्य, कुंज। तो मैं एक बार इसको समझाता हूँ कि कैसे काम करता है। अब अज्यूम कीजिए कि ये इनपुट है, ठीक है। अज्यूम कीजिए माधव इज इनपुट एंड आरव इज आउटपुट, ठीक है। और ये हमारे तीनों वर्किंग नोड है। तो माधव एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता है। ये तीनों जो मिडिल में जो लेयर्स होते हैं, मिडिल लेयर्स जो होते हैं, वो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं और इसको इको करते हैं आउटपुटर को, और आउटपुटर उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेके एक फाइनल रिजल्ट देता है। तो सिंपल एक एग्जांपल देंगे। It's bigger than a car or any other animal. It's grey and rough. It has a long hose on its body. It is an elephant. तो बेसिकली क्या हुआ, मैंने इनको पहले से बता रखा था। तो इस बच्चे ने एलिफेंट का पिक्चर लिया और अपने वर्कर नोड को पास किया। ये पिक्चर है, आपको रिकॉग्नाइज करना है। तो इन्होंने बताया कि इट्स बिगर देन कार, बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा है, और बाकी एनिमल के से भी बड़ा है। एक फीचर इसका निकाल के दिया। दूसरा फीचर इन्होंने दिया कि ये ग्रे कलर का है, कलर बेस्ड है और थोड़ा सा स्किन रफ है। और तीसरे ने दिया कि होस बहुत बड़ा है, ठीक है ना। होस जो हम लोग फाइट को बोलते हैं, वो बहुत बड़ा है उस एनिमल का। और ये तीनों डेटा जो निकल के आया, वो आउटपुटर ने एनालाइज किया और बताया कि ये एलिफेंट है। तो इस तरीके से न्यूरल नेटवर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम करता है, किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करके आंसर देने के लिए, ठीक है। अभी तो रॉन्ग भी हो सकता है। जी सर, अभी तो रॉन्ग भी हो सकता है। एकदम रॉन्ग हो सकता है। तो बेसिकली क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के न्यूरल नेटवर्क में बहुत सारी प्रोग्रामिंग होती हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। वो प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। तो जो भी सॉल्यूशन निकालता है वो प्रिडिक्शन करता है कि ये जो एलिफेंट है, मैं 90% डिटेक्ट करके बोल सकता हूँ कि शायद ये एलिफेंट है। लेकिन सुन जो होती है एलिफेंट के अलावा शायद किसी और के पास भी हो, थोड़ा छोटा होगा, जो थोड़ा सा शेप में लगता है, तो बोले कि नहीं मुझे एनिमल दूसरा भी लगता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 5%, ठीक है। तो इस तरीके से एआई रिजल्ट देता है। लेकिन आपने सही बात बोली, एआई तो जरूरी नहीं है कि जो आंसर दे रहा हो वो सही हो। आज के दिन एआई इतना कैपेबल नहीं हुआ है कि जो भी आंसर हम मांग रहे हैं वो आंसर सही दे रहा होगा। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात जरूर करेंगे कि किस तरीके से एआई हम लोग को यूज करना है। तो जैसे आप स्क्रीन पे अभी देखेंगे, इसी चीज हाइपोथेसिस को समझाना की कोशिश कर रहा था कि एक ब्लर सा फोटो दिया हुआ है डॉग का, और टीम ए टीम बी लग गई है उनके फीचर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए। और देखिए बच्चे सारे लगे हुए हैं
और इनपुट दिया, हिडन लेयर है जो हमारे 3 बच्चे थे और फाइनल आउटपुट आया। और जो मैं बात कर रहा था प्रेडिक्शन की कि डॉग वो शायद 85% गेस कर पा रहा है, कैट भी हो सकता है 10% और वुल्फ भी हो सकता है 5%। इस तरीके से एनालाइज करके वो आउटपुट बड़ा कर दो तो। एआई देता है। अब लर्निंग मेथड की बात तो हो गई, छोड़ दो अब हम बात करेंगे कि कितने तरीके के एआई, पावर बैंक यहाँ what are पॉकेट the में। types of AI which we are using right now. The first is very simple, discriminative AI. ठीक है, discriminative AI में क्या है कि आप कुछ दिखाते हैं और वो उसका जवाब देता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेटिव AI। जिसके बारे में हम लोग एक एग्जांपल जो ले रहे थे वो ये है कि आपने एक डॉग का फोटो दिखाया और वो बताता है कि हाँ ये डॉग का फोटो है या नहीं है। ये सिंपल AI की एबिलिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिव AI। दूसरा होता है जनरेटिव AI। जनरेटिव AI के बारे में जो वर्ड है इटसेल्फ कितने लोगों ने सुना है? जनरेटिव AI, जनरेटिव AI। तो वेरी गुड। तो जनरेटिव AI जो आप यूज कर रही थी कि मैं इमेज क्रिएट करती हूँ, मैं वीडियो क्रिएट करती हूँ, दैट्स जनरेटिव AI। जनरेटिव AI, the word itself describes, it generates something new. It will generate image, it could generate stories, it could generate a code, a program for you, it could generate videos, it could generate animation, it could generate a song and video or voice, anything. Okay? And there are so many solutions which has this capability and they are working great, but still there lots of improvement required. So this is what we call generative AI, generate something new. अब हमने बात कर ली, मैं स्लाइड स्किप करता हूँ, एजेंटिक AI जो कि थर्ड टाइप ऑफ AI है। तो डिस्क्रिमिनेटिव AI जो सिंपल एक फोटो दिखाया और उसको पहचान के बताया, जनरेटिव AI जो कुछ जनरेट करके देगा। तीसरा जो एडवांस टाइप ऑफ AI है जिसको हम लोग बोलते हैं एजेंटिक AI। एजेंटिक AI में क्या है कि आपने एक टास्क दिया, ठीक है, वो टास्क वो एंड टू एंड कंप्लीट करके आपको देगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपने बोला AI को मुझे एक फ्लाइट टिकट बुक करनी है, मुझे कैसी फ्लाइट टिकट बुक करनी है, मुझे बताना है कि सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, किस डेट को मुझे फ्लाई करना है और मेरा बजट ये है। आपने इतना डिस्क्राइब करके उस AI को दे दिया। वो क्या करेगा, वो फ्लाइट को ढूंढेगा, डेट उसी डेट को देखेगा, ठीक है, आपने अगर टाइम मेंशन किया होगा तो वो टाइम भी देखेगा, फिर बजट आपने दिया हुआ है तो देखेगा कि हाँ उसकी प्राइस जो है टिकट की उस बजट में आ रही है नहीं आ रही है, उसके बाद उस टिकट को बुक करेगा। ये क्या है कि आजकल हम लोग सुनते होंगे कि एजेंट बेस्ड AI आया है। एजेंट बेस्ड AI क्या है? एजेंटिक AI है जो कि बहुत सारे सिस्टम से इंटीग्रेटेड होता है, जिसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि टिकट बुक करने के लिए कार्ड इंफॉर्मेशन भी चाहिए होगा पेमेंट्स के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिक पेमेंट भी आपका करेगा। तो ये है एजेंटिक AI। हो सकता है कि आप अगर रियल टाइप लाइफ एग्जांपल दें तो जैसे आपने घर में आपने सब कुछ मॉडर्नाइज कर दिया है, सब कुछ जैसे बोलते हैं स्मार्ट होम का कंसेप्ट, ठीक है ना, आपके जो ड्रेप्स होते हैं वो खुद से डाउन हो जाएंगे, लाइट ऑन हो जाएगा, गेट बंद हो जाएगा। तो अगर सब कुछ AI से कनेक्टेड है तो AI आपको कैमरा के थ्रू विजुलाइज कर रहा है, वो देखता है कि आप सोने जा रहे हैं तो क्या करता है, सारे लाइट्स ऑफ कर देता है, गेट लॉक कर देता है, टेम्परेचर सेट कर देता है, कुछ अगर इलेक्ट्रिसिटी जो फालतू की जल रही थी वो जब बंद कर देता है, लाइट्स डिम कर देता है। ये सारे एजेंटिक AI का काम है। तो जो स्लाइड हमने पहले स्किप किया था, NLP एंड LLM, ये एक टर्म्स आते हैं AI के वर्ड में, ठीक है। अब हम जब AI से इंटरेक्ट करते हैं, अब AI कोई ह्यूमन तो है नहीं, AI एक कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम है, ठीक है। अब AI हमारी भाषा कैसे समझता है? हम तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, बट AI इज
only knows computer language in terms of 0 and 1 binary numbers, ठीक है। तो उसके लिए NLP बनाया गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। तो हम जब इंग्लिश में बात करते हैं तो वो NLP की कैपेबिलिटी की वजह से वो इस चीज़ को समझ पाता है कि हम बोल क्या रहे हैं। तो अब मुझे सिर्फ जैसे हिंदी और इंग्लिश आती है, आज के दिन अगर कोई फ्रेंच आदमी आ जाए और बोनजोर बोल के चला जाए तो ठीक है, मैं समझ जाऊँगा, उसके आगे कुछ बोलेगा तो सब निकल जाएगा, ठीक है। मुझे वो लैंग्वेज नहीं आती है। तो सिमिलरली AI से बात करने के लिए कोई लैंग्वेज चाहिए था जो ब्रिज कर सके हमारे और उनके बीच में, तो इसलिए NLP क्रिएट किया गया। तो NLP का विजुअलाइजेशन भी हम लोग लास्ट में देखेंगे कि कैसे एग्जैक्टली अंदर चीज़ें हो रही होगी। मैंने एक विजुअलाइजेशन क्रिएट किया है, उसको मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा। फिर दूसरा टर्म होता है LLM। LLM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेसिकली ये भी वन ऑफ द टाइप ऑफ AI है। इसका काम है प्रिडिक्ट करना। तो बहुत लोगों ने, जब मैंने पूछा ना कि AI कौन कौन यूज़ करता है, तो बहुत लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया, ठीक है। जब आप गूगल पे जाते हैं ना तो आप टाइप करते हैं ना कि सजेस्ट सम मूवी नेम, तो आप देखते होंगे कि कुछ वर्ड्स पहले से लिखे हुए आते हैं, है ना, कि आप लिख नहीं रहे अपने सेंटेंस को, वो पहले से कहते हैं कि कंप्लीट करेंगे, ऑटो कंप्लीट, ठीक है। तो LLM का काम है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग AI यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप लोग AI बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं। ये AI है तो प्रिडिक्शन का काम करता है, ऑटो करेक्शन का काम करता है, ये LLM का काम है, जो कि जनरेटिव AI के अंदर फॉल होता है, वन ऑफ द ब्रांच ऑफ जनरेटिव AI। तो सबके घर में वो है एलेक्सा, ठीक है। एलेक्सा मुझे गाना ये सुना दो, एलेक्सा लाइट ऑफ कर दो। तो बेसिकली NLP की वजह से ऐसा होता है कि हम कुछ बोलते हैं और AI समझता है और उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसको एक्शन करता है। ये हो गया आपका LLM, the cat sat on the and then it predicts the word, again the mathematical formula that what will be the probability of the next word. अब जब AI से हम बात करते हैं, जैसे आप टेक्स्ट जनरेट करती हैं, इमेज जनरेट करती हैं, वीडियो जनरेट करती हैं, तो आप लोग AI से जब बात करते हैं तो कुछ लिखते हैं शायद, है ना, टेक्स्ट बॉक्स। हम लोग जब व्हाट्सएप यूज करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग चैटिंग कर रहे हैं ना, कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन AI के वर्ल्ड में हम लोग उसको बोलते हैं कि प्रॉम्प्ट लिखना है, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट लिखना एक आर्ट है और आर्ट को हम लोगों ने टर्म दिया है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो AI अगर आप जितना वेग लिखेंगे ना वो वैसा आंसर देगा, और जितना आप क्लियर इंस्ट्रक्शन देंगे वो उतना अच्छा आपको आउटपुट देगा। तो अब मैं बोलता हूँ कि मुझे एक स्टोरी बना के दो स्पेस के बारे में, वो कुछ लिख के कि शायद मुझे समझ में भी नहीं आए। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे स्टोरी चाहिए स्पेस के लिए, तुम अपने आप को स्कूल का टीचर कंसीडर करो जहाँ पे स्पेस के बारे में उसको बताना है और ये सिर्फ बच्चों को समझाना है, कुछ इंटरेक्टिव एग्जाम्पल होने चाहिए और बहुत लंबी स्टोरी नहीं होनी चाहिए। तो इतना क्लियर इंस्ट्रक्शन देने के बाद, जिसको हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं, वो AI उसको बेटर रिजल्ट देगा आपके हिसाब से देगा। अगर आप वीडियोस बनाते हैं तो आपको बताना होगा मुझे वीडियोस इतना लंबा चाहिए, आप अपने आप को कंटेंट क्रिएटर समझिए, अपने आप को एनिमेटर रोल समझिए। तो एक मॉडल एक फ्रेमवर्क होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्कैप, ठीक है। तो आप पहले AI को बोलते हैं कि आप अपने आप को ये समझो, स्कूल टीचर समझो, अपने आप को साइंटिस्ट समझो, ठीक है, अपने आप को सिंगर समझो, अपने आप को डायरेक्टर समझो, कंटेक्स्ट कि क्यों कर रहे हो लोग, फिर उसके बाद बता दें करना क्या है और कंस्ट्रेंट है, ठीक है, कि क्या क्या होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये जो आज के दिन प्रेजेंटेशन में दिखा रहा हूँ ये AI ने क्रिएट करके दिया है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा फाइन ट्यून करने के बाद। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि मैं जो मांग रहा था वो शायद मैं सही तरीके से नहीं लिखा। कुछ शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग होती है, कुछ लॉन्ग प्रॉम्प्टिंग होती है। अगर सिंपल काम कराना है तो आपको जैसे पूछना है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो उतना ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें टीचर होना चाहिए और ये करते एक सिंपल क्वेश्चन है, उसका सिंपल आंसर आएगा, उसके लिए आप सिंपल फॉलो कर सकते हैं।
अब मैं एक दो तीन चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा AI जो टूल नेम है वो आप लोग कौन से यूज़ करते हैं? प्लीज़ चैट जीपीटी का नाम बताइएगा। एलेक्सा, AI मोड, वेरी गुड। जेमिनी, हाँ, जेमिनी, वेरी गुड। तो हम लोग बात करेंगे, एक मैंने ये बनाया है, ये मैंने AI से ही बनवाया है, खुद से नहीं बनाया है। तो समझाने के लिए कि वो जो डॉग और कैट का था वो प्रेडिक्शन कैसे होता है। तो अगर आप देखें तो मुझे पहले बोला है कि इनपुट लेयर पे फोटो सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ जाके, जैसे मैंने डॉग सेलेक्ट किया, ठीक है। तो अब देखिए हिडन लेयर में कुछ हुआ, यहाँ पे कैलकुलेशन हुई और यहाँ पे प्रेडिक्शन चल रहा है डॉग है या कैट है, ठीक है। और उसने डॉग फोटो जो मैंने दिया यहाँ पे वो डॉग का जो कि 81% दिखा रहा है कि ये डॉग है और कैट 19%। और देखिए क्या क्या उसने पैरामीटर्स लिया है उस इमेज को एनालाइज करने के लिए। जैसे स्ट्राइप हो सकता है, छोटा टाइनी या लार्ज है, या उसके विस्कर्स कैसे हैं, वो पैरामीटर लेके डिसाइड किया है कि ये डॉग है या कैट है। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि AI को आप लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं अपने खुद के सेल्फ लर्निंग के लिए। जो आपने थ्योरेटिकल नॉलेज तो मिलेगी, ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सही से यूज करें तो इस तरह के विजुअलाइजेशन आप क्रिएट कर सकते हैं खुद को समझने के लिए और किसी को समझाने के लिए, उसके बच्चों को समझाने के लिए खासकर। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ, मैंने एक वेबसाइट बनाया है, एक AI सॉल्यूशन का नाम है लवेबल, ठीक है। ये बहुत फेमस सॉल्यूशन आज के दिन निकल के आ रहा है। इसमें इसकी खासियत क्या है इस लवेबल वेबसाइट की कि आपको अगर एप्लीकेशन डेवलप करना है तो आपको बताना है कि क्या चाहिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और उसके साथ प्लानिंग कीजिए और वो आपको बताएगा कि इसी तरीके का मैं सोच रहा हूँ ऐप बनाने का और क्या क्या चीज़ें ऐप के अंदर होनी चाहिए वो आपके साथ डिस्कस करेगा और वो ऐप डिप्लॉय भी कर देगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने बोला कि मुझे एक मॉडल रेडी करना है AI का, जो कि मैं उसको मॉडल को ट्रेन करूँगा इमेज देके और फिर मैं उससे पूछूंगा ट्रेनिंग के बाद कि ये क्या है, ठीक है। तो मैं उसको दिखाता हूँ आपको, जैसे ट्रेन मॉडल। So it will require a login। ये जब मैं डेवलप कर रहा था तो उसने पूछा था कि लॉगिन चाहिए या आप किसी गेस्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू जा सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, खूब सारे फोटो आपको कैप्चर करने हैं। फिर मैं जाता हूँ क्लास B के पास, दूसरा ऑब्जेक्ट होगा तो मान लीजिए मैं वाटर बॉटल, ठीक है। बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ फोटो।
फिर हम जाएंगे नेक्स्ट लेवल पे और इस पे नाम देंगे। पहला हो गया अपना माइक, दूसरा हो गया बॉटल, फिर हम इसको ट्रेन करेंगे, ठीक है। अब इसकी ट्रेनिंग चल रही है, बॉटल का पिक्चर दिया हुआ है, माइक का पिक्चर दिया हुआ है, अब इसकी ट्रेनिंग चल रही है। कुछ माइक्रो सेकेंड्स लगेंगे ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे। मेरे 30 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो बेसिकली ये होगा, ये जो पैरामीटर्स हैं वो बैकग्राउंड में चल रहा होता है, इमेज को वो किसी तरीके से सेव करता है, फिर हम टेस्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे ही माइक का फोटो लिया है तो माइक बोल रहा है 100%, इट्स 100%। सो मॉडल ट्रेन हो चुका है माइक और वाटर के बेस पे। हमने माइक दिखाया और ये मॉडल बता रहा है कि ये माइक था, मैं इसके लिए 100% श्योर हूँ। तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि AI की जो कैपेबिलिटी है कहाँ तक पहुँच गई है। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, प्रॉम्प्ट इंजन में मैंने लिखा है, मेरा खुद का इमेजिनेशन था कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है, और वो इमेजिनेशन मैंने यहाँ पे लाके डाला है। तो सेम चीज है जो मैं लास्ट में आप लोगों को कंक्लूड करते हुए बताना चाह रहा था कि AI की कैपेबिलिटी को हम लोग को यूज करना है। AI आ चुका है, बहुत सारी बातें हैं कि नेगेटिव बातें भी हैं, पॉजिटिव बातें भी हैं कि AI शायद बबल है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये शायद बबल है, कुछ दिन रहेगा चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, बबल नहीं है। अगर आप देखें तो आप लोग खुद बोल रहे हैं कि आप प्रोफेशनल लाइफ में यूज करना शुरू कर चुके हैं। मैं पर्सनली बहुत सालों से देखा हूँ, बहुत सारे सोल्यूशन ऑलरेडी यूज हो रहा है। तो ये AI कहीं जा नहीं रहा, तो बेटर है कि पॉजिटिवली आप इसको यूज करें। लेकिन एक बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको इम्पोर्टेंट है यूज करते समय ध्यान रखिएगा कि पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो शेयर ना करें फिलहाल इस स्टेज पे, क्योंकि अभी AI मैच्योर हो रहा है। We don't know that the data which we are sharing with the company, how they are going to use it. Now, the way I talked it, that you know that you are talking about something and you are getting a recommendation. Basically, what is happening that they are selling the product, right? They are influencing you that day and time. You know, join the swimming classes. Join the swimming classes. If you are talking about the swimming classes, there are many swimming classes. Go for this. You know. This classes and that classes. So if I am talking about AI, then you know my YouTube will be flooding for AI. You know, you have this certification of AI, that certification. So it's very important that the way you use it. और AI को यूज करते समय कंप्लीटली रिलाई नहीं करना है कि AI जो आंसर दे रहा है वो सही देगा। अगर आप जेमिनी खोलते हैं तो लास्ट में एक लाइन होता है, वी आर नॉट 100% एक्यूरेट। ओके, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है AI के साथ। तो आपको उसको वैलिडेट करना है और जो भी चीज़ें हैं AI को यूज़ कर रहे हैं तो AI का जो आउटपुट होता है उसको आपको खुद से इन्हांस करना है क्योंकि जो हमारा जो इमेजिनेशन है, हमारी जो खुद की क्रिएटिविटी है वो AI यूज़ करने से ख़त्म नहीं होनी चाहिए। हमें AI को यूज़ करना है अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने हिसाब से, और उसके ऊपर उसको इन्हांस करना है। बस इसी के साथ मैं अपना सेशन कंप्लीट करता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, वेरी इंसाइटफुल। अगर हमने पर्सनल डाटा डाल दिया है AI पे तो उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं? आप कंपनी को बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि अगर मुझे लगता है किसी टाइम पे कि पर्सनल डेटा उसको शायद मिल गया है तो मैं कमांड देता हूँ कि प्लीज़ क्लियर माई डेटा, ठीक है। और मैं उसको टेस्ट भी करता हूँ कि किसी न किसी तरीके से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू कि ये शायद डेटा अभी रखा है या नहीं रखा है, बट दे नो गारंटी ऑफ इट बिकॉज they are different companies and which they have given AI and they have their own personal agenda. So it's not 100% sure that you would say that you know the data are deleted.
and especially the company like Google, they will say that we are not keeping the data, we don't store. They are already saying it, that we don't store it. We are just using the data and we don't store it anywhere, we are just processing it. So I think the next session is about security. Mr. Pereira will be, giving more answer on that. I don't want to take more of time of, about the security. But again, I hope that it helps. One more question, Mr. Pereira. Yes, please. In your opinion or in your experience, in your opinion or in your experience, is there any major drawback or disadvantage of the using AI in our personal or family or social level? Of course, sir. I give you an example like the voice cloning. Sorry? Voice cloning, AI using voice cloning. Yes. Create the duplicate voice the same to same. Yes, yes. And the people are criminal, they are misusing sometimes. Yes. See, whatever the technology comes, be it AI or anything else, there is always a drawback of that technology as well. So it depends on the people who are using this technology. So taking one of the example which you have taken, that so many frauds are happening because there is a voice cloning, and it's very hard to recognize that it's AI-based voice cloning. So yes, it's very important to be aware, and just one of the things that first thing that you can do, that you try to find a way to verify that whatever I'm listening is correct or not. It's like this, that when you're working in an organization and we are talking about social engineering, right? Wherein we are saying that whenever you receive a phishing email, you have to report it. So you need to understand that what are the parameters that what we call it is phishing email. Same goes for here as well. You need to understand what are the parameters that you're saying that this could be a duplicate, it could be the clone voice notes, and it could harm you in a personal way or in a professional way. So I would say that be prudent and try to not rely completely on what you are hearing and what you are seeing, and that's it. थैंक यू सो मच सुमित टिकरीवाल जी, जो आपने AI टेक्नोलॉजी के बारे में इतने आसान भाषा में हमें समझाया. It was really a nice presentation and we all enjoyed. I think audience भी मेरे साथ सहमत होगी.